Hi everyone. A very good evening to you all. Hi. Hi Salim. So, hello. Hi Shahid. Can you hear me? क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? Hi, can you guys hear me? Hello. Hi. Oh, I have some friends and family here. And thank you, my friends, for coming here. And I'm gonna do a live chat with Dev Rath on a film called I Am Rinda. And this is going to be a fun session, I'm hoping. Can you guys hear me properly? Because, all right, great. Great, आप मुझे सुन पा रहे हैं? Thank you, Shimpi. Hello, Sandeep Patil. Hi, Bhaskar ji. My performance. Asha, thank you so much. Especially my police look. All right, thank you. आप इंडिया में किस जगह से हैं? मैं हूँ ग्वालियर से, एमपी से. लव योर वॉइस, थैंक यू सो मच. लव इन लाटे अंधेरी. लव इन लाटे अंधेरी. वहाँ मिलना चाहते हैं क्या मुझसे? मैडम, क्राइम पेट्रोल कब शुरू होगा? अरे आप लेट हैं, शुरू हो चुका है. क्राइम पेट्रोल, यस, इट्स वेरी गुड. थैंक यू जवित. Nadeem, hi Nadeem. So Nadeem is a director and he directs Crime Patrol. People, please follow him because he is the one who's behind our success. Eh, I like you too. Okay, so now I'm gonna begin my chat session with Devrat. For the film I'm Vrinda, we're going to talk about the film I Am Vrinda. It's a very special film. Also, it's made by a friend. His name is Tanmay, and I think he's also going to be joining us in the comment section. He's a brilliant director again. And to Devrat. Hi, Hi. can you hear me? Dev, if you're speaking anything, I can't hear you at all. Okay, so that's the issue. Just a sec. You think I need to check my settings? No, you are okay. I can hear you loud and clear. Something on my end, I guess. So that's why you're I not can able barely to. hear you. Just hang on. Just one. Yeah, Nani ji is watching too. Okay, I have big news. My Nani ji is watching this series. जो अभी हम रहे हैं. And Nani ji, नमस्ते. मैं आपको बहुत याद करती हूँ. और पिछली बार आपसे बात नहीं हो पाई थी, लेकिन जल्दी फोन करती हूँ और आपको कॉल करती हूँ. Hi. Okay. great. So I just received a message from Tanmay that he can hear us both. आप सुन पा रहे हैं मुझे? सबको आपकी आवाज आ रही है, लेकिन मुझे ये क्या घपला है? हाँ, शायद नेटवर्क की कनेक्टिविटी थोड़ी सी आपके यहाँ पे भी फ्लक्चुएट हो रही है. So maybe that's the reason. Oh, all right. Yeah. All right. Now I can hear you.
Okay. Because I heard network की connectivity का problem है. Can you be a little louder because Yeah, मुझे sure, sure. कान ऐसे करके सुनना पड़ेगा. ठीक है, sure. I'll be loud, even louder. So सबसे पहले hi, nice to see you. Same here ना. You can hear me, right? Very little. Oh, just a minute. I'll remove the earphone. One. Okay. Hi अब सुन पा रहे भावेश जी. हैं? Hi. Okay. अभी सुन पा रहे हैं? अभी सुन पा रहे हैं आप मुझे? Oh. नहीं? Hear me? No. Just a second. Okay, wait. I'm gonna move from Wi-Fi to my mobile network, and probably that's gonna make a difference. हाँ, शायद उसी से फर्क पड़ रहा है क्योंकि शायद दूसरे लोग सुन पा रहे हैं. अगर 1 मिनट कर दें. Yeah, there is something wrong with her internet, I guess. Now she's visible. Okay. Now you can hear me? Hear us. Wow. Great. We can't do a secret chat now. Yeah. So you can hear me right now, correct? Yes. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. सो हम स्टार्ट कर सकते हैं. सबसे पहले आपका बहुत बहुत वेलकम इस लाइव सेशन में एंड थैंक्स अ लॉट टाइम निकालने के लिए, सब लोगों से रूबरू होने के लिए. मैं भी खुद भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड था आपसे मिलने के लिए क्योंकि जब मेरे को पता पड़ा कि आप एक कथक डांसर और सिंगर भी हैं, आपने पंडित बिरजू महाराज जी से ट्रेनिंग भी ले रखी है प्रॉपरली कथक डांस की. सो आई वाज रियली मेस्मराइज्ड और मुझे लगा ये सेशन तो बहुत ज्यादा कमाल का होने वाला है. सो लुकिंग फॉरवर्ड टू अ ग्रेट सेशन. हम लोग थोड़ा सा जरूर लेट हो गए बट नो वरीज. जब स्टार्ट करें तब क्या. बिल्कुल नहीं, मैं भी एक्साइटेड थी क्योंकि मैंने आपके दादाजी को, पंडित जी को, पंडित विश्व मोहन भट्ट इनके दादाजी हैं, जो कि जिन्होंने मोहन वीणा का इजाद किया और पूरे देश भर में उसे पॉपुलर किया, देश नहीं विदेशों में भी पॉपुलर किया. तो मैं पंडित जी से जब मैं बहुत छोटी थी तब मैं उनका एक कॉन्सर्ट सुनने गई थी. ओह ग्रेट. तो तो मेरी बात हुई थी पंडित जी से एंड ही वाज वेरी वेरी ग्रेसफुल एंड इफ यू मीट हिम प्लीज एक्सटेंड माय रिगार्ड्स टू हिम. वो आए थे ग्वालियर तानसेन समारोह में प्ले करने के लिए. बिल्कुल बहुत फेमस, वो तो बहुत बड़ा कॉन्सर्ट होता है वहां पे. एग्जैक्टली. जी जी जी. तो उन्हें मेरा नमस्ते कहिएगा और आशीर्वाद के लिए कहिएगा. जी जरूर, बिल्कुल. तो बहुत अच्छा आज सेशन होने वाला है दोस्तों. आप सब लोग का बहुत बहुत शुक्रिया जो भी जुड़े हैं. शाश्वता जी की तरफ से, मेरी तरफ से सब लोगों का वेलकम. और हम कुछ सवाल जवाब आज इनसे करने वाले हैं जो कि बहुत मजेदार होंगे, बहुत कुछ जानने को मिलेगा. सो पहला क्वेश्चन शाश्वता जी मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अभी रिसेंट एक बहुत बड़ा अचीवमेंट आपके साथ में जुड़ा है. वो ये है कि आपकी फिल्म मैं वृंदा बहुत क्रिटिकली एक्लेम्ड भी रही, प्लस यूएस और कनाडा में ऑफिशियल रिलीज मिला है इसको, वो भी इस टाइम पे. सो बहुत बड़ा एक फेदर इन कैप है. सो इसके लिए मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने जो डबिंग करी है, आपने अपनी खूबसूरत आवाज इसमें दी है जिसकी वजह से हम लोग एक एक सीन के साथ जुड़ाव महसूस कर पाते हैं. तो वो आपने मतलब किस तरह से आपको लगा कि इस प्रोजेक्ट के लिए आपको हाँ कहना चाहिए, इस वॉइस ओवर के लिए क्या सोच के आपने ये किया. और दूसरा साथ में एक और इसके क्वेश्चन है अटैच कि मैंने सुना है कि तन्मय और आप बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो आपने इसके लिए कुछ भी चार्ज नहीं किया. सो ये जो स्क्रिप्ट का कमाल था कि आपने इसको हाँ कहा या जस्ट आउट ऑफ फ्रेंडशिप. तो सबसे पहले तो जो लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये फिल्म है आई एम वृंदा और फिल्म का ट्रेलर जो है मेरी स्टोरीज पर अवेलेबल है. आप उस ट्रेलर को देख सकते हैं और आपको बहुत इंट्रीगिंग लगेगा. वो ट्रेलर देखने के बाद आपको लगेगा कि आपकी फिल्म जरूर देखें. तो आपने सवाल पूछा कि मैं इस प्रोजेक्ट से कैसे जुड़ी और सिर्फ दोस्ती में जुड़ गई या फिर फिल्म सच में अच्छी लगी. मैंने इसके लिए वॉइस ओवर किया. तो इस फिल्म में अगर आप आवाज सुनेंगे तो वो मेरी आवाज है. तो भाई हुआ यूं कि
जब तन्मय तन्मय को हम पहले से जानते हैं, एक आध बार हम पहले मिल चुके थे। उसके पहले हम एक फिल्म के बारे में बात कर रहे थे कि उससे जुड़ेंगे, मैंने उनके लिए ऑडिशन भी किया था। और ऐसे कुछ कुछ वक्फे पर बात होती रहती थी तन्मय से। लेकिन जब उन्होंने इस फिल्म का जिक्र किया और मुझे फिल्म दिखाई तो मुझे फिल्म बहुत अच्छी लगी। सही बात तो ये है कि फिल्म अच्छी लगी, और जिस तरीके से इन्होंने बनाई वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा तरीका। बहुत क्रिएटिव आदमी है तन्मय खुद, और बिल्कुल। शाये भी बहुत है, इसलिए आज शायद सिर्फ मैसेजेस में हमारे साथ जुड़े होंगे। यस। लेकिन अ, फिल्म की जो तहें हैं वो बहुत सारी हैं। सबसे अच्छी बात यह है उस फिल्म में। तो कहानी देखने में, जो जो कहानी देखने में चल रही है, विजुअल जो नैरेटिव चल रहा है और जो ऑडियो नैरेटिव चल रहा है, उसके कनेक्शंस जैसे जैसे एक एक सीन बढ़ता जाता है आगे, जैसे जैसे आप कनेक्ट करते जाते हैं तो आपको फीलिंग आती है कि अच्छा मैं इसके साथ जुड़ रहा हूँ, मैं इसके साथ, अच्छा अब ये हुआ, अच्छा अब ये हुआ, अच्छा इसका मतलब ये है। तो आई जी, थिंक वो बड़ा इंटरेस्टिंग है इस फिल्म में। तो आप लोग जो लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पर वो देखिए उस फिल्म को। और पैसे तो मैंने चार्ज नहीं किया, ऑफ कोर्स। पैसे की कोई बात नहीं थी उसमें। अच्छा काम, मेरे ख्याल से अच्छा काम निकल कर आए, बाहर लोगों तक पहुंचे, ये बहुत जरूरी एकदम है। सही और बात कही है आपने। तो जो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स हैं, मुझे लगता है उनको बढ़ावा देने की जरूरत है। और अच्छा बिल्कुल। जो काम करना चाह रहे हैं, एक फिल्म एक ऐसा मीडियम है, एक ऐसा जरिया है जो बहुत लोगों तक एक साथ पहुंच सकता है। यानी कि आप अपनी बात, जो मैं आपसे आज बात कह रही हूँ, वो हम्म। बात अगर मैं फिल्म बनाकर कह दूं तो पूरी दुनिया देख सकती है उसे। बिल्कुल सही बात है एकदम। तो इसकी सबसे खूबसूरत बात यह है फिल्म के माध्यम की। तो जो अच्छी फिल्म है, अच्छा प्रोडक्ट है, किसी ने दिल से और दिमाग से बनाया है, तो उसको लोगों तक पहुंचना चाहिए, मुझे लगता है। बहुत सही आपने कहा। और मैंने भी ये फ़िल्म देखी है, मैं बहुत और भी ज़्यादा बड़ा फ़ैन हो गया तन्मय का इस फ़िल्म के बाद, क्योंकि जिस तरह से एक-एक सीन को इतनी शिद्दत से इन्होंने फ़िल्माया है, प्लस सारे कलाकारों की एक्टिंग और आपका और संकेत जी का वॉइस ओवर, हर चीज़ ने अपने आप में 4 चाँद लगाए हैं इस फ़िल्म के अंदर। सो एक-एक सीन को हम अंदर तक, रूह तक फ़ील कर पाते हैं, और ये फ़िल्म मेकर की सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है कि एक टीम वर्क इतना कमाल का निकल के आए। और मैंने बहुत सारे मैसेजेस पढ़े हैं शाश्विता जी, लोग पूछ रहे हैं कि ये फ़िल्म हम कहाँ देख सकते हैं? तो आप एक बार ज़रूर अभी बताना चाहें, चाहे थोड़ी देर के बाद, एक बार आप ज़रूर बता दें इन सबको कि ये फ़िल्म कहाँ देखी जा सकती है? तो बहुत तो सारे अभी लोगों हाल के फिलहाल क्वेश्चंस। ये फिल्म, हाँ हाल फिलहाल ये फिल्म स्क्रीन हो रही है कनाडा और यूएस में, और कई फिल्म फेस्टिवल्स में सिलेक्ट हुई है, तो वहाँ स्क्रीन हो रही है। इनफैक्ट लॉकडाउन के जस्ट पहले आई थिंक कोलकाता फिल्म फेस्टिवल में भी ये स्क्रीन हुई है। तो अभी तो आप ट्रेलर से काम चलाइए, और जैसे ही मेरे ख्याल से थिएटर्स खुलेंगे और जितने फेस्टिवल्स शुरू होंगे, वहां आप ये फिल्म जरूर देख सकते हैं। और फिर उसके बाद बिल्कुल। डायरेक्टर पे डिपेंड करता है कि वो पब्लिक रिलीज कब करते हैं। मेरे ख्याल से नहीं आई। तन्मय इसका जवाब दे सकते हैं बेहतर तरीके से। अगर तन्मय आप यहाँ पर हैं मैसेजेस में, सो मे बी यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन फॉर जी, बिल्कुल। एवरीवन। सो तन्मय प्लीज़ आप कमेंट करके सब लोगों को, ये जो इतने ज़्यादा क्यूरियस हैं जानने के लिए, इसको प्लीज़ आप आंसर करें, ताकि हमारे सारे जो व्यूअर्स जुड़े हुए हैं उन सबको पता पड़ सके। और शाश्विता जी, सबसे पहले मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा। आप बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल और बहुत प्रिटी लग रहे हैं और मैं आज आपसे एक गाना ज़रूर सुनूँगा। सो आप प्रिपेयर्ड रहिएगा, कुछ भी अच्छा सा, चाहे क्लासिकल बेस्ड, चाहे कुछ भी जो आपका फेवरेट है, मैं आपसे वो ज़रूर सुनना चाहूँगा और बहुत मज़ा आएगा क्योंकि बाप रे, ऐसे ऐसे पशुपेश में मत डालिए। नहीं, नहीं, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ने के बाद से क्यूरियस हूँ आपको सुनने के लिए, क्योंकि एक्टिंग तो हम लोग सब देखते ही हैं और सब लोग आपके बहुत बड़े फैन हैं। मैं खुद बहुत टाइम से फॉलो करता आ रहा हूँ आपके सारे जो भी आप प्रोजेक्ट्स करते हैं। सो दिस इज़ समथिंग न्यू कि आपके जो और व्यूअर्स हैं उनको भी आज ये देखने को मिलेगा कि आप कितने अच्छे वोकलिस्ट भी हैं। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। ओके, विल सी कहाँ ले जाती है ये चैट सेशन, कहाँ ले जाता है, विल सी किस पड़ाव पे आके रुक। जी, बिल्कुल। नवीन, ओके। तो तब मैं कह रही कि 2021 में ये इसका डिजिटल रिलीज यस। करेंगे, और आप सब लोग तब देख पाएंगे। हाल फिलहाल ट्रेलर देखिए और मेरी आवाज सुनिए, और मुझे बताइए कि आप रिलेट कर पा रहे हैं मेरी आवाज से या नहीं। अच्छा, ये बताइए शाश्विता जी, आपने जब ये स्क्रिप्ट पढ़ी
तो आपको क्या फील हुआ कि ये अपने आप में कंप्लीट या परफेक्ट स्क्रिप्ट है, या आपको कुछ लूप होल्स भी लगे, कुछ ऐसा लगा आपको कि इम्प्रूव किया जा सकता है, या कोई सजेशंस थे आपके तन्मय के लिए इसको और अच्छा करने के लिए? अ, मेरे पास दरअसल फिल्म का फर्स्ट कट देखा था मैंने। तो जब फर्स्ट कट हो जाता है, आप एक तरीके से उसको रफली शूट कर लेते हैं। आपके पास एक स्टोरी लाइन थी उनके, और वो उन्होंने रफली शूट की थी, एडिट हो रही थी, काफी हद तक हो चुकी थी। तो तब मेरे पास ये फिल्म आई थी, और तन्मय हैड आस्क्ड, वुड यू लाइक टू do a voiceover for that? I said, yeah, sure, why not? Because I was already doing voiceovers for, I had done a narration for Premchand's Godan for Storytel. एंड मैंने एक और शो है प्रेमचंद की, मैंने 10 कहानियां पढ़ी थी। एक BMS जूक बॉक्स करके एक शो था, बुक माई शो के प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल था। ये भी ओके। ऑडियो शो था। तो तब मैं मैं ये काम करती हूँ वॉइसिंग का, बट स्पेसिफिकली ये जितने भी मेरे नैरेटिव या जो भी नरेशन वाले काम थे, वो मेरी कंपनी जो है, मेरी थिएटर कंपनी है जश्न कलम, उसकी तरफ से जनरेटेड थे। तो मार्केट में जाके मैं एज अ वॉइस ओवर एक्टर अभी तक मैंने ट्राई नहीं किया है, पर शायद तन्मय मुझे बोलते हैं कि करना चाहिए। पर इस फिल्म के बाद शायद मुझे ज्यादा प्रोत्साहन मिले और मैं करने लगूं। पर उन्होंने मुझे ये फिल्म दिखाई तो मुझे इंटरेस्टिंग लगा, और फिर हमने एक दिन ऐसे फिक्स किया कि चलिए डब करते हैं। वहां जाकर डब किया। तो मैंने, बट आई सॉ द फिल्म अगेन एंड अगेन। 2-3 बार मैंने देखी कि वो एक्टर जो है वो क्या एक्सप्रेस कर रही हैं, क्या इमोशंस हैं, क्या रिक्वायर्ड है उसके लिए। तो हम्म। उस तरीके से हम को परस्यू किया, उसको अप्रोच किया। वाओ, मस्ट हैव बीन अ ग्रेट एक्सपीरियंस, आई एम श्योर। और इट वाज मतलब फिल्म में बड़ी अच्छी बात यह है कि जैसे मेरा रुझान लिटरेचर की तरफ है ना, कहानियों की तरफ है। मेरा जो थिएटर कंपनी है जश्न कलम, उसमें हम साहित्य की, हिंदुस्तानी लिटरेचर की कहानियां सुनाते हैं। तो इसमें भी वृंदा की जो कहानी है, आई एम वृंदा, हम्म, वृंदा की कहानी भी इट्स अ, मतलब एक लेजेंडरी कहानी है, एक लेजेंड बोलते हैं यस जिनको, इंडीड। जिन कहानियों को। वृंदा वो बिल्कुल। एक, मतलब एक राजा की बेटी थी जिन्हें पहली नजर में गणेश जी से प्यार हो गया, लेकिन गणेश जी ने उनका प्यार एक्सेप्ट नहीं किया और आशीर्वाद दिया कि भाई मेरे साथ साथ तुम्हारी पूजा होगी, लेकिन फिर भी वो साथ में नहीं है। गणेश जी के उस पर यस, वृंदा, मतलब तुलसी का जो पौधा है वो बाहर रहता है। बिल्कुल बिल्कुल तो सही बात। ये जो एक लेजेंड उन्होंने इस्तेमाल की है। फिर उन्होंने बड़े अजीम शायर हैं फैज अहमद फैज, उनका एक कलाम जो है वो इन्होंने अपने फिल्म में इस्तेमाल किया है। तो मुझे लगता है कि ये एक तरीके से एक पूरा पैकेज है फिल्म जो यस। है। इस तरीके से ये सोसाइटी पर कमेंट कर रही है, लेकिन हैविंग जो एक अपनेपन की जो खुशबू है हमारे देश की, उसके यस। साथ। तो मुझे लगता है ये बड़ा इंटरेस्टिंग इन्होंने कॉम्बिनेशन चुना है, और ये सारी लाइनें बोलने में, सोचने में, उनको पकाने में बड़ा मजा आया। संकेत के साथ भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। यस। संकेत चौकसे जिन्होंने जिन्होंने लड़के की आवाज दी है, मैंने फीमेल एक्टर की वॉइस किया है, उन्होंने मेल एक्टर का वॉइस किया है। तो उनके साथ भी बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस रहा। जब वो रिकॉर्ड कर रहे थे, डब कर रहे थे, तो मैं उन्हें सुन रही थी, और जब मैं डब कर रही थी तब वो मुझे सुन रहे थे। एंड वी वर ट्राइंग टू गेज कि हम ऐसे रिएक्शंस कर सकते हैं, या इसको विजुअली अगर ऐसा दिख रहा है तो हम इसको ऐसे इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। हम्म। सो या इट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग, मजा आया करके। वाह। सो हम होप करेंगे आप आगे भी फ्यूचर में प्रॉपर एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट की तरह और प्रोजेक्ट्स करते रहें, और हमें आपकी एक प्यारी सी आवाज सुनने को मिलती रहे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में। मैं सोच रही हूँ एक और जिम्मेदारी लेनी चाहिए या नहीं। बिल्कुल, अरे यू शुड डेफिनेटली। अच्छा, एक चीज मुझे और बताइए, आपने मार्लिन लाइट्स भी जी देखी है तन्मय की? जी। सो मार्लिन लाइट्स और मैं वृंदा दोनों जिन्होंने देखी हैं, उनके दोनों के 50-50% जाते हैं वोट्स। कुछ 50% लोग बोलते हैं कि मार्लिन लाइट्स वाज अ बेटर वन, एंड 50% लोग बोलते हैं कि मैं वृंदा एक स्टेप अहेड है। सो आपको कौन सी दोनों में से फेवरेट लगती है? एक अनबायस्ड ओपिनियन आपका, अगर आप सिर्फ एक मूवी गोइंग एक्सपीरियंस से देखें तो। मैं अनबायस्ड ओपिनियन नहीं दे पाऊंगी। मुझे पता है, इसलिए दैट्स व्हाई आई मेंशनड इट इन कोट्स। फिर भी आप चलिए, मेरे फिर साथ भी एक। आप मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं। मैं अनबायस्ड ओपिनियन नहीं दे सकती। भाई मैं जिस फिल्म की एक्टर हूँ, मैं कहूंगी कि ये तो बहुत अच्छी थी। ये बात तो नहीं, खैर पर सही है। मेरे ख्याल से मैरियन लाइट्स जो तन्मय ने बनाई थी, वो
उस फिल्म से और आई एम वृंदा जो फिल्म है उसमें जो उनके अंदर तब्दीली आई है, उन्होंने जो जिंदगी को एक्सपीरियंस किया है, उन्होंने जो अपना नजरिया डेवलप किया है, मेरे ख्याल से वो जो है वो इसमें झलकता है आई एम वृंदा। यस, क्या है, हर आर्टिस्ट की जिंदगी में ऐसा होता है कि अपना एक नजरिया डेवलप करने में वक्त लगता है। आप जिंदगी को अपने अंदर सोख रहे होते हैं, फिर उसको अपने किसी क्रिएटिव काम में निकालते हैं। बिल्कुल सही। मेरे ख्याल से ये उनके लिए एक उनकी जर्नी का एक माइलस्टोन है। एक मैरिलिन लाइट्स था, अब ये अगला है, और आशा करते हैं कि वो ये जो उनकी ग्रोथ है, वो जो लर्निंग कर्व है, उसको और बड़ा करते जाएं और अच्छा अच्छा काम करते रहें और अच्छी फिल्में हमें देते रहें। बिल्कुल, बहुत सही कहा है आपने। ये लर्निंग फेज जो है, एक आप हर फिल्म के साथ साथ एक लीप लेते जाते हैं, आपका मैच्योरिटी लेवल जो है वो बहुत बढ़ता चला जाता है। प्लस जो एक्सपीरियंसेस और बहुत सारी चीजें हमको सिखाती हैं, वो भी आप इनपुट अपने फिल्म्स में डाल सकते हैं। सो दैट्स अ वेरी करेक्ट थिंग यू हैव सेड। और मुझे भी अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन माने तो मर्लिन लाइट्स मुझे समहाउ मैं उसको एक थोड़ा सा एज देता हूँ कि एक ओवरऑल मूवी के तौर पे मैं मर्लिन लाइट्स के फेवर में हमेशा रहता हूँ। मैं तन्मय को भी ये बात बोलता हूँ। मैं वृंदा इज ऑल्सो अ मास्टरपीस, नो डाउट्स अबाउट दैट। पर हाँ ठीक है, सबका अपना अपना क्योंकि एक फेवरेट होता है। सो आई गो फॉर मर्लिन लाइट्स, बट मैं वृंदा इज an amazing movie and everyone should watch it because एक जो लास्ट में हमने इसमें एक देखा है कि मूवी के बारे में हम ज्यादा तो बता नहीं सकते, बट एक बहुत ही सरप्राइजिंग एलिमेंट जो हम इसके क्लाइमैक्स में देखने को मिलता है और बहुत अंदर तक झकझोर देने वाली चीजें हैं उसमें। सो दैट्स अमेजिंग एंड रियली कमेंडेबल वर्क बाय एवरीवन। ओके, सो आई हैव क्वेश्चंस फ्रॉम योर फैंस एज वेल, तो मैं वो भी धीरे धीरे आई विल मूव ऑन टू देम। Yeah. So, okay, one of the questions from your fan is कि ये जश्न कलाम जो है, इसके बारे में आप थोड़ा सा अगर बता सके। या हाँ, तो जश्न कलम, कलम इज पेन, कलम, या जश्न कलम, सॉरी। हम कलम कहेंगे तो वो कलम हो जाएगा। या पर पेन का यानी कलम का जश्न मनाते हैं, यानी वी सेलिब्रेट लिटरेचर। So my friend KC Shankar, he was the main brain behind it, और मैं उनके साथ काफी सालों से काम कर रही हूँ। पिछले 6 साल से हम ये काम कर रहे हैं। तो हम हिंदुस्तानी साहित्य की यानी हिंदुस्तानी लिटरेचर की कहानियों को सबसे सरल किस्सा गोई की परंपरा के जरिए लोगों तक पहुंचाते हैं। एक थिएटर परफॉर्मेंस होती है जिसमें एक सोलो एक्टर पूरी की पूरी कहानी जिस तरह से लिखी गई है शब्द दर शब्द उसको याद करता है और उसको इनैक्ट करता है। ऐसे बैठकर जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ वैसे नहीं बताते, उसका पूरा कोरियोग्राफ्ड वर्जन होता है, उसको इनैक्ट करता है। तो आपने जैसे नाम सुने होंगे प्रेमचंद, मंटो, अमृता प्रीतम, बिल्कुल है ना, कमलेश्वर जी, राजेंद्र सिंह यादव, जिंदर सिंह बेदी, राजेंद्र यादव जी, उनकी कहानियों को पूरी तरीके से हम लोग याद करके और उनको परफॉर्म करते हैं। सो ये परफॉर्मेंसेस पहले तो हम थिएटर्स में करते थे, बड़े छोटे थिएटर्स में, लिटरेचर फेस्टिवल्स में, कॉलेजेस में, लेकिन अब लॉकडाउन हो गया है तो अब हम ये डिजिटली कर रहे हैं। तो फ्री भी करते हैं। तो जिन लोगों ने थिएटर नहीं देखा है कभी भी, जिनको नहीं पता है कि नाटक की कौन सी ये विधा है, तो ये सोलो थिएटर, सोलो परफॉर्मेंसेस कह लें इसको, और लाइव परफॉर्मेंस होती है तो आमने सामने बैठ के आप देखते हैं। और सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि इसमें फोर्थ वॉल नहीं होती। नाटक से अगर 4 प्लेयर्स वो आपस में नाटक करते हैं और दर्शक हैं वो उन्हें देखते हैं कि आपस में नाटक कर रहे हैं, लेकिन हमारी किस्सा गो यानी स्टोरी टेलर जो है वो सामने दर्शक से बात करता है और दर्शक को कहानी सुनाता है। तो दर्शक भी उस कहानी का कभी कभी हिस्सा बन जाते हैं। बहुत बहुत सही बात बोली आपने। ये फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम हैंडल है और यूट्यूब है, आप उस पर देख सकते हैं। मैं उस पर 4 कहानियां परफॉर्म करती हूँ और मेरे दोस्त हैं, हम लोग तकरीबन 20 से 25 कहानियां उस पर परफॉर्म करते हैं। तो आप देख सकते हैं। आजकल डिजिटल का तो घर में बैठे बैठे थिएटर देख लीजिए अगर नहीं कभी किसी ने देखा है। और ये
किस्सा कोई नहीं देखती है तो ये इसका भी मजा ले लीजिए। भाई जिंदगी में कुछ छोड़ना नहीं चाहिए मुझे। बिल्कुल तो सही बात है। हर एक्सपीरियंस आपके लिए बहुत जरूरी है और एनरिच करता है, हमेशा आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। सो डेफिनेटली। और थिएटर जो है सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आर्ट है, शायद बोल सकते हैं एक्टिंग का, क्योंकि कोई रिटेक्स नहीं है, आपको जो है सामने के सामने लाइव परफॉर्म करना है लोगों के सामने, और लोग भी कहीं ना कहीं उसका हिस्सा हैं साथ में। सो बहुत सही बात बोली आपने। जी जी, शुक्रिया। अच्छा, मैंने ऐसा सुना है कि फैज अहमद फैज जी आपके काफी पसंदीदा लेखकों में से हैं, आप काफी उनको जी फॉलो करते हैं, तो कुछ उनका अगर सुना दें, उनका लिखा अगर कुछ आपको याद जी। हो, अभी कुछ सुना सकें। अ, याद तो मुझे नहीं है, लेकिन ये फरमाइश मैं आपकी कभी और पूरी करूं। जरूर जरूर। आई विल वेट फॉर दैट, और सारी ऑडियंस भी हमारी वेट करेगी, हम जरूर सुनना चाहेंगे कुछ। अच्छा, मुझे एक चीज और जाननी थी कि आपने एक फिल्म में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जब आप डबिंग कर रहे थे कि आपने फैज अहमद फैज साहब की तरह इनको रेफर करने के लिए पहले खुद कहा था, फिर आपने खुद उस चीज के लिए मना किया। सो मतलब ये इसका क्या रीजन रहा, ऐसा क्यों, आप क्या आपके दिमाग में था ऐसा ना करने के मतलब लिए? सॉरी, फिर से बोलिए, मैं समझ नहीं अ, पाई, वो कट गया था। मतलब मुझे ऐसा पता पड़ा कि आपने इस फिल्म की डबिंग के दौरान एक आइडिया दिया था कि फैज साहब बोला जाए उन्हें, और उसके बाद फिर जी, आपने उसको बाद में खुद ही रिजेक्ट कर दिया था इस आइडिया को। सो क्यों, ऐसा क्यों था? अ, एक तो जो बड़े राइटर्स होते हैं, अ, जी। अ, वो सिर्फ एक शख्सियत नहीं रह जाते। हम्म। हाँ, तो आप किसी पर्सन को साहब करके आप कहते कि ये वो साहब है, ये फलाना साहब है, लेकिन फैज जो है वो सोच है, वो एक पूरा उनकी जनरेशन या उनकी जो अगर आप राइटिंग पढ़ेंगे तो वो एक सोच है। हम्म। इस फिल्म में भी उस जो उनकी लाइनें इस्तेमाल की हैं अ, वो एक थॉट की तरह इस्तेमाल की है। बिल्कुल और सही। मेरे ख्याल से इतना ये राइटर्स में स्पेशली इतना अपनापन होता है कि वो आपको अपने लगने लग जाते हैं। जैसे गालिब को चचा बोलते हैं, गालिब चचा। हम्म। अब खुद किसी के चचा हुए, मतलब आज की जनरेशन के, लेकिन इतना अपनापन राइटर्स के लिए स्पेशली, इतना अपनापन हम महसूस करते हैं कि वो लगता है मेरे ही तो है। तो जब आप अपनेपन से इस्तेमाल करते हैं, एक तो आपका हक भी बिल्कुल। होता है। और साहब की बात जहाँ तक करें, वहाँ मुझे लगता है कि वो जो उनकी सोच जो है वो अपने आप में इतनी बड़ी है कि उस शख्सियत को रेफर करना, मुझे लगा कि वो उतना अच्छा बहुत नहीं है। बहुत सही आपने इस चीज का आंसर दिया, और मैं यही एक्सपेक्ट भी कर रहा था आपसे। अपनापन जो है, हम जिस पे बहुत ज्यादा हक समझते हैं या प्यार करते हैं, उनके साथ में हम जी या साहब इस तरह के जो सफिक्सेस हैं वो ऐड नहीं करते हैं नॉर्मली। सो ये लोग जो होते हैं जिनको हम इतना ज्यादा चाहते हैं और हम इनको एडमायर करते हैं प्लस इंस्पायर होते हैं, इनसे एक अपनापन अलग सा बन जाता है, और इनको इनके नाम से बुलाने में शायद सबसे ज्यादा खूबसूरती है। सो बहुत बहुत अच्छा आंसर शाश्वता जी, एंड आई एम रियली इम्प्रेस्ड कि आपने इस अजीब से क्वेश्चन को भी बड़े ही अच्छे तरीके से हैंडल किया। दिस वॉज अ ट्रिक क्वेश्चन एक्चुअली, सो मैं सोच रहा था कि आप इसको कैसे जवाब देंगे, लेकिन आपने बहुत आराम से हैंडल कर लिया। आप मुझे परख रहे हैं। नो नो, नॉट एट ऑल, परखना जस्ट किडिंग। मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता। परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता। किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता। और बड़े लोगों किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं। बड़े लोगों से मिलने में हमेशा पास रखना। जहां दरिया समंदर से मिला, दरिया नहीं रहता। क्या बात, क्या बात, बहुत ही बढ़िया। आप परखिए मत। बिल्कुल नहीं, मुझे मुझे सीख मिल चुकी है मेरी, एंड आई एम नाउ अगेन थैंकफुल कि ये क्वेश्चन पूछने की वजह से हमें ये शेर सुनने को मिल गया आपसे फाइनली।
अच्छा, शाश्विता जी, शायद बीच में थोड़ा सा ऑडियो का प्रॉब्लम हुआ था, मैंने भी वो फेस किया और शायद हमारे बाकी जो जुड़े हुए हैं ऑडियंस उन्होंने भी। सो नाउ इट्स क्लियर आई गेस। सो हाँ। इसलिए मैंने दोबारा वो शेर पढ़ा। हाँ बिल्कुल, मैं समझ गया था। अभी सही है, आप एकदम लाउड एंड क्लियर हैं अगेन। सो एक एक मेरा बहुत, मैं खुद इस चीज को लेके बहुत ज्यादा क्यूरियस था। काशवी इस जी फिल्म की लीड एक्ट्रेस हैं, तो जी। ऐसा क्या था कि तन्मय ने काशवी की जगह आपको इस फिल्म में वॉइस ओवर के लिए चूज किया, रादर देन द एक्चुअल एक्ट्रेस हु हैव प्लेड द लीड रोल? सो ऐसा क्या जादू था आपकी आवाज में, या उन्हें ऐसा क्या लगा कि उन्होंने आपको इस चीज के लिए यू बीइंग वेरी नाइस टू मी। सबसे पहली बात तो ये सवाल आपको डायरेक्टर से पूछना चाहिए, है ना, जी, मैं क्योंकि उनसे पूछ उन्हें चुका हूँ और मुझे जवाब पता भी है, लेकिन मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से भी जानना चाहता हूँ ये। को नहीं पता, ये सवाल उनका जवाब है, मतलब उनका सवाल है, मेरा मेरा सवाल नहीं है, मुझे माफ कर देना। चलिए तो फिर ठीक है, अब तो हम अगर इस वाले को स्किप कर रहे हैं तो एक और मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि कोई दिक्कतें आपको जो और महसूस हुई इसमें डबिंग के लिए? सॉरी। एक और बॉम्ब तो नहीं फेंकने वाले हैं? नहीं नहीं नहीं, ये बहुत बहुत अच्छा सा एकदम इजी गोइंग सा सवाल है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि क्या दिक्कतें फेस की होंगी कनेक्शन बिठाने में आपने, क्योंकि जब आप उस फिल्म में खुद एक्टर नहीं होते हैं और आपको सिर्फ आवाज देनी होती है उस पूरी सिचुएशन को, चाहे आपने फिल्म देख भी ली हो अच्छे से, पर फिर भी कुछ डिस्कनेक्ट्स आते हैं। तो ऐसी कोई आपको प्रॉब्लम्स फेस हुई डबिंग के दौरान कि डिस्कनेक्ट्स रहे हों? नॉट एक्चुअली, क्योंकि um, सबसे अच्छी बात तो ये है कि फिल्म बहुत अच्छी है, तो फिल्म देखकर ही आपका बिल्कुल। इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। वाह, मुझे इसके लिए वॉइस ओवर करना है, ओह दिस इज इंटरेस्टिंग, इसमें मजा आएगा। फिर यस। मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, स्क्रिप्ट का स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो जो कनेक्टिंग डॉट्स है वो विजुअल से ऑडियो जो है वो अ, अलग तरीके से कनेक्ट होता है। मैं पूरी तरीके से तो रिवील नहीं करूंगी, दूसरे जी तरीके से बिल्कुल। कनेक्ट होता हाँ। है। इंटरेस्टिंग, वो एक बड़ा क्रिएटिव और इंटरेस्टिंग तरीका है उसको, ऑडियो नैरेटिव को विजुअल नैरेटिव पे दिखाने का। तो मेरे ख्याल से शुरुआत में जो बस ये सिलेक्ट करना कि हम इसका टोन क्या रखें, क्योंकि यस। फिल्म थोड़ी है, फिल्म में बहुत सारी तहें हैं, तो उसका टोन क्या सेट करें, दोनों, इवन संकेत और मैं, कि वो ड्रीमी भी लगे, सरियल भी लगे, लेकिन वो ग्राउंडेड इन रियलिटी भी लगे। तो आई थिंक वो शुरुआत में 2-4 बार करने में, वो सब करते करते एक दूसरे का, मैंने उनका काफी डब सुना, पहले वो डब कर रहे थे फिर मैंने किया, ऐसा हुआ। हम्म। तो उसमें उसके दौरान हमने ये जो बस जो वहां तक पहुंचना था कि इसको शुरू, मतलब क्या टोन क्या सेट करना है, एक बार वो सेट हो गया तो फिर उसके बाद तो हम लोग इम्प्रोवाइज भी कर रहे थे यस। बीच बीच में। तो वो गाइड कर रहे थे कि अच्छा आप ऐसा कर सकते हैं या ये एक्सप्लोर कर सकते हैं। ही वॉज ऑल्सो, बिकॉज जब हम कर रहे होते हैं, परफॉर्म कर रहे होते हैं, और जो सुन रहा होता है, especially the director, he knows what he wants exactly. So आई थिंक उन्होंने वो काफी सारी एक्सप्लोरेशन हम लोगों से करवाई कि आप ये ट्राई करिए, दूसरा को ट्राई करिए, हाँ। कर दो। सो व्हेन ही यूज्ड टू से एक ऐसा कर दो, तो मैं 4 वैसे करती थी, कुछ ऐसा उसमें, कुछ ऐसा उसमें, कुछ ऐसा। सो या आई थिंक दैट वाज समथिंग इंटरेस्टिंग, मजा आया था वो करके। यस इंडीड, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा होगा, आई एम श्योर। और मुझे ये भी पता पड़ा था कि ये आपने पहले ये भी बोला था तन्मय से कि एक बार आप काशवी को देखना चाहते हैं बिफोर द डबिंग, क्योंकि आपने जो अभी एक बात कही टोन वाली कि आप टोन डीप नहीं रखना चाहते थे, तो आफ्टर सीइंग काशवी आपने डिसाइड किया कि आपको इसमें टोन डीप नहीं रखना है। सो ये जजमेंट जो है, हम मतलब मैं उन लोगों के लिए चाहता हूँ जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, या जो आपके फैंस जो भी देख रहे हैं, कि अगर कुछ इस तरह का काम करना चाहते हैं तो क्या ऐसे आप एक टिप देना चाहेंगे इसमें कि कैसे आप जज करते हैं इन चीजों को? दिस इज रियली डिफिकल्ट टू जज एक्चुअली। आई थिंक आई वाज लुकिंग एट इट लाइक एन एक्टर rather than a voiceover actor. या So if I was seeing someone on screen, what is that voice or tone I would be expecting to come out of this person's uh, personality? या So
मैं उसको सबसे पहले एक्टर की तरह देख रही थी, बिकॉज एक तो एज ग्रुप, जितना रियलिटी में हर चीज बेस्ड होगी उतनी बिलीवेबल होगी और उतनी सक्सेसफुल होगी। बिल्कुल बिल्कुल सही तो बात है। मेरे ख्याल से कोशिश ये थी कि एक बार देख लें कि वो कैसी हैं, उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है और क्या उसकी जरूरत है, तो किस टोन की जरूरत है। तो मेरे ख्याल से वो मैंने उनसे पूछा था कि आप मुझे एक बार दिखा दें कि कैसा अ, उनका तौर तरीका कैसा है, कितना हाँ मूवमेंट है, कितना ठहर, और किस तरीके के सीन्स हैं, कहाँ वो चुलबुली हैं, कहाँ वो तो सटल हैं, या कहाँ वो दुखी हैं। तो अगर मेरे को एक ग्राफ मिल जाता है तो मैं एक पूरा का पूरा उनका एक कैरेक्टर बना पाऊंगी। तो आई थिंक ये एक ये मुझे भी सीखने को मिला, क्योंकि मैंने पहले कभी किसी और के लिए डबिंग तो नहीं की थी, अपने लिए ही की है जब भी मैंने फिल्में की हैं। मैं टेलीविजन शो करती हूँ क्राइम पेट्रोल, कभी यस उसकी डबिंग निकल फॉर माई ओन सेल्फ, एंड किसी और के लिए डबिंग करना वाज इंटरेस्टिंग। तो मुझे लगा तैयारी अच्छी, मैं लगी कि अरे ये किसने डब कर दिया। बहुत अच्छा। और ये इतना टफ काम है दोस्तों, आप जो लोग भी देख रहे हैं, इन्होंने बहुत ही आराम से, बहुत बोलते हैं कि सरलता के साथ इस चीज को बता दिया, लेकिन ट्रस्ट मी ये बहुत डिफिकल्ट काम है। किसी और की स्किन में घुस के, जहां आप नहीं है खुद, आप उसको फील करके और अपनी वॉइस में वो मॉड्यूलेशंस लाना, जो शाश्विता जी ने एफर्टलेसली करके दिखाया इस फिल्म के लिए। और जब आप ये फिल्म देखेंगे आपको खुद एहसास होगा कि इन्होंने अपनी आवाज से जान डाल दी उस कैरेक्टर में, उस फिल्म में, और चार चांद लगाए हैं शाश्विता जी आपने। सो मैं एक बार फिर से मतलब आपके लिए क्लैप करना चाहूंगा, रियली ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज, कूडोज टू द होल टीम, कूडोज टू तन्मय ये सोचने के लिए कि आपसे डब कराना है। सो अमेजिंग वर्क। अच्छा, आपको कहीं ऐसा लगा था डब करते टाइम कि काश मैं ही ये हीरोइन का रोल भी मैं ही कर रही होती, या मतलब मैं ही होनी चाहिए थी इस फिल्म में एक्टर की जगह पे? हाँ हाँ अरे बिल्कुल। सच्ची तो आपने कही ये बात तन्मय से? हाँ मैंने बोला। ओह, दैट्स सो बैड ऑफ हिम उन्होंने क्या फिल्म किया? ओह माय गॉड, नो वरीज। लेकिन नेक्स्ट नेक्स्ट प्रोजेक्ट जब भी हो रहे हैं तो जरूर ये बात ध्यान रखेंगे, और हम आपको जरूर साथ में काम करते हुए देखना चाहेंगे बहुत ही जल्दी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं एक बार टाइम का जायजा ले लेता हूँ कि क्योंकि ये शायद 1 घंटे चलता है मैक्सिमम इंस्टाग्राम सेशन। सो मेरे पास हाँ बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि पूछने के लिए, जानने के लिए, आपका गाना भी सुनना है। सो मेरे को सब कुछ मैनेज करना होगा फटाफट फटाफट। तो कुछ अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में बता दीजिए। अभी हम आपको कहाँ कहाँ दिखते हैं? क्राइम पेट्रोल तो आप रेगुलरली कर रहे हैं, और बहुत ह्यूज फैन फॉलोइंग है आपकी, मैंने ये देखा है, अभी कमेंट्स भी लगातार आ रहे हैं। सो बहुत लोग प्यार करते हैं आपको, बहुत सराहते हैं, और उनके लिए अगर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स बता सकें। So Crime Patrol is something that I've been doing for almost now 3 years. और मैंने उसके पहले भी काफी शोज किए हैं, मैंने डेली सोप किया है। जी था डोली अरमानों की, वो मैं या करती थी। उसके पहले कलर्स पे एक शो आता था, बानी इश्क दा कलमा, यस मैं उस भूमिका करती थी। और उसके पहले मर्यादा लेकिन कब तक आता था स्टार प्लस पे। यस यस यस, तब बिल्कुल। तो ये सिलसिला तब से चला आ रहा है। लेकिन मेरे ख्याल से क्राइम पेट्रोल की खास बात ये, एक तो उसकी रीच बहुत है, बहुत सारे लोग उसे देखते हैं। और जो शो है क्राइम पेट्रोल, जो लोग बनाते हैं वो लोग वो बहुत मेहनत करते हैं उस पर। और मैं ये मतलब सीना ठोक के कह सकती हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट ऑन इंडियन टेलीविजन क्राइम पेट्रोल रहा है। बिल्कुल जिस तरीके की क्वालिटी उन्होंने की है, और फिल्म मेकिंग की जो एक लैंग्वेज है, जितने परफेक्शन के साथ वो उसे दिखाते हैं, मेरे ख्याल से काफी लोग उनसे इंस्पायर हुए हैं एक्चुअली। वो और मैं शो यहाँ पे वाले। एक एड ऑन करना चाहूंगा, सॉरी टू इंटरप्ट, बट मैंने रिसेंटली एक वेब सीरीज देखी थी, इट वाज कॉल्ड अब है। सो कुणाल खेमू वाज द लीड इन दैट, और वो बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड लगी मुझे क्राइम पेट्रोल से। सो उसके हर एक एपिसोड में कुछ इसी तरह की क्राइम की घटनाएं दिखाई गई हैं जो थोड़ी सी अनयूजुअल हैं, एंड वो मतलब लुकिंग सो मच इंस्पायर्ड फ्रॉम क्राइम पेट्रोल। सो ये बहुत बड़ी बात है कि एक वेब सीरीज उस सीरियल से इंस्पायर होकर बनाई जा रही है, दैट टू अ वेरी हिट एंड लव्ड वेब सीरीज। सो
अमेजिंग। क्राइम पेट्रोल ने जितना सस्टेन किया है इतने टाइम से टेलीविजन इंडस्ट्री में, दैट्स रियली कमेंडेबल। सो प्लीज आप कुछ कह रहे थे, आप कंटिन्यू। हाँ, मतलब मैं यही बता रही थी कि मैंने एक्चुअली मेरा लर्निंग कर्व भी तभी शुरू हुआ जब मैंने वो सीरीज ज्वाइन किया। उसके पहले मैं हाथ पैर मार रही थी, काफी सारी चीजें ट्राई कर रही थी, कोशिश कर रही थी। आई वाज ट्राइंग टू मेक सेंस of how as an actor am I growing and how my creative expression is finding its space in this um, such a big pool of talent industry. I mean, right, there are so many people and so many talented people, and I'm trying to find my feet in it. So I think Crime Patrol also gave me that learning curve, and in my own life I was going through a learning curve, and Crime Patrol gave me that platform. So तो मेल हुआ तो मेरे लिए सोने पे सुहागा ही हो गया, क्योंकि मुझे एक्सपोजर भी काफी मिला और मेरे टैलेंट को भी एक्सपोजर मिला, मुझे दूसरों से सीखने को बहुत मिला सेट पर, और मेरे लर्निंग कर्व को, मेरी ग्रोथ को एक जो है प्रोपेलर्स मिल गए एक तरीके से। तो बिल्कुल सही। कोशिश ये जो सीखने की जो प्रक्रिया है वो चलती रहे। तो हाल फिलहाल तो दिस इज समथिंग विच इज गोइंग ऑन। मैं इसके लिए शूट करती हूँ क्राइम पेट्रोल के लिए, और मेरा जो थिएटर कंपनी है, स्टोरी टेलिंग कंपनी है, वो मैं साथ साथ उसको उसका दिया भी जलाए रखी हूँ। वो नई नई कहानी रहती हूँ और उन्हें परफॉर्म करती रहती हूँ। तो ये हाल फिलहाल ये है। फ्यूचर प्रोजेक्ट्स ऐसा है कि लॉकडाउन जब खुलेगा ठीक तरीके से और जब इंडस्ट्री फुली फंक्शनल हो जाएगी, तब होपफुली कुछ नया आएगा, पर जब आएगा तभी मैं आपको बता पाऊंगी। उसके पहले से मैं अभी अनाउंस नहीं, मैं इसके पहले नहीं हूँ कि मैं अभी अनाउंस करूँ। जी बिल्कुल। Unless it comes only then I will be able to tell you about the future projects. ओके, नो वरीज, हम लोग वेट करेंगे आप जल्दी से हमको अपडेट्स दें अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए, सारे फैंस। और मैं देख के इतना ओवरवेल्म हो रहा हूँ, आपको कितना ज्यादा प्यार करने वाले, कितने ज्यादा चाहने वाले लोग हैं। इतनी देर से मैं लगातार कमेंट्स भी देखता जा रहा हूँ और सब लोग आपको भर भर के प्यार दे रहे हैं। सारे लोग आपके एकदम मतलब भयंकर वाले जिसको बोलते हैं फैन है। सो दैट्स रियली सो स्वीट ऑफ देम। एंड आप जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, मैं आप सबको बताना चाहूंगा। कुछ लोग शाश्विता जी इस वीडियो चैट में आना चाह रहे थे, शायद वो लिख रहे हैं कि आप इन्हीं के लिए आए हैं क्या लाइव। सो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये लाइव सेशन शेड्यूल्ड था ऑलरेडी मेरा और शाश्विता जी का। आज बहुत सारी बातें करने के लिए, आपके सामने इनके वो पहलू लाने के लिए जो नॉर्मली आपको नहीं देखने को मिलते हैं। एंड आई होप आप सबको बहुत मजा आ रहा होगा। शाश्विता जी ने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं अब तक। सो आप लोग आई होप एंजॉय कर रहे हैं, और इस सेशन को प्लीज आप जुड़े रहें, सपोर्ट करते रहें। और जितने भी फैंस हैं मैम के, वो सब लोग मेरे मतलब मेरी तरफ से उन लोगों को बहुत बहुत थैंक यू। इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स, आपका इतना अच्छा एंगेजमेंट बना हुआ है। सो शाश्विता जी, एक बड़ा मैं फनी सा क्वेश्चन करूंगा आपसे। I'd like to say thank you to all my friends and fan family कि बहुत प्यारे हैं और बहुत सपोर्ट करते हैं और बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस करते हैं। कई बार मैं मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर पाती, लेकिन जब मैं रात को 3-3 बजे तक जागती हूँ, तब मैं सबके मैसेज रिप्लाई भी। तो जिसको अगर रिप्लाई नहीं मिला है तो समझ लो क्यों नहीं मिला है। बहुत सही। ये डिफरेंशिएट कर पाना, वो लोगों के अंदर भी ये इंट्रोस्पेक्शन होना चाहिए कि हम क्या ऐसा कर रहे हैं कि अगर आप सबको रिप्लाई कर रहे हैं और उनको नहीं कर रहे हैं, सो देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग विद देम ओनली। सो ये थिन लाइन को क्रॉस नहीं करना आना चाहिए लोगों को। बहुत अच्छी बात कही है आपने। मैं रात को 3-3 बजे तक कभी कभी जागती हूँ, और जब ऐसा होता है तब मैं जरूर बात करना पसंद करती हूँ। तो मेरे ख्याल से मेरे कुछ फैन फ्रेंड्स हैं जो बता पाएंगे इस बात को कि मैंने उनसे रात को 3 बजे 4 बजे भी बात की है। और और वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि आप फेक हैं, आप हो ही नहीं सकते, आप रात को 3 बजे क्यों बात करेंगी। That's so sweet. नहीं ये Is it real Shashwita Sharma, the cop? And I would say yes. And they say, hut. I'm like, okay. Oh gosh. अच्छा, तो हमारे डायरेक्टर
बोल रहे हैं कि किसी का नाम कह दीजिए। जी जी जी, आप तो ही कहिए। बिल्कुल। कि मुझे मुझे अभी एक बार बोल दो, आपको अभी बोल दूं? नहीं, वो शायद कहना चाह रहे हैं कि मुझे अभी अभी बोल दो, मतलब मेरा नाम अभी ले लो। तो हिज नेम इज राकेश चौधरी, तो आप अगर ले दें उनका नाम, सो ही मस्ट बी रियली राकेश हैप्पी। चौधरी मच यहाँ हमारी बात सुनने के लिए। आज कि आज आपका पुराना वाला एपिसोड देखा, गीता प्रसाद राजीव वाला। ओ यस, यस, देखने के लिए अच्छा लगा। वील कम बैक। आपकी आवाज थोड़ी सी बीच में मिस हुई। मैं कह रही हूँ वील कम बैक टू आवर चिट चैट नाउ, बताइए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सो अभी नेक्स्ट हम कोई ज्यादा लोगों को इंतजार नहीं करवाते हुए कुछ सुनना चाहेंगे आपसे, अच्छा सा गाना कुछ भी। आप क्लासिकल गाएं, चाहे गजल गाएं, चाहे कुछ भी, बॉलीवुड सॉन्ग, एनीथिंग एनीथिंग। अरे राम। ओके। मैं एक फोक गाती हूँ। तो जरूर, मैं अरे। ग्वालियर से हूँ, हम्म। बुंदेलखंड से। और ये बुंदेलखंडी फोक है, ये मैं अपनी कहानी में भी इस्तेमाल करती हूँ। हम्म, तो अक्सर क्या होता है कि ये जो अ, लोक संगीत है, ये लोक संगीत जो है हमारी अ, दिनचर्या का एक हिस्सा होता है, जो हम दैनिक जीवन जो है उसका हिस्सा है। बिल्कुल जी। और इसमें एक पत्नी जो है, सैया जो है उनके, वो अपने अपनी अपने पति को अ, गरिया रही हैं, मतलब गाली दे रही हैं, पर असल में वो गाली नहीं, मतलब वो हम्म। प्यार से जो किसी को उलाहना देना होता है, हाँ हाँ। वो कह रही हैं और अपना दुखड़ा रो रही है एक तरीके से। ओके। तो तो करम फूट गए सैया, मेरे मूसर चंद करम फूट गए। हाँ, करम फूट गए सैया, मिले मूसर चंद करम फूट गए। इनके हैं सात नाम गिन के सुनाए, इनके हैं सात नाम गिन के सुनाए। और मिट्ठू और मिचके, अरे मिट्ठू और मिचके, मठोले कहाँ कुठ मल्ले धराए, ये सटोले कहाँ, और छठे हैं बुद्धू। समझ में आ रहा है क्या? थोड़ा थोड़ा, बिल्कुल। थोड़ा थोड़ा समझ में आ हाँ, नहीं काफी रहा है। अच्छा, कुछ। तो वो गा ऑलमोस्ट रही है कि ऑलमोस्ट पूरा। करम, यार मेरी हाँ कैसी किस्मत फूट गई, ऐसे सैया मिल गए। सैया मिले मूसर चंद, यानी ऐसे किसी काम के नहीं है, और हाँ, एकदम खड़ूस। मूसर हाँ। चंद। तो वो कह रही इनके हैं नाम गिन के सुनाए, सात इनके नाम है, हम गिन के सुनाते हैं। मिट्ठू, तो पहला तो है मिट्ठू, और दूसरा है मिचके, है, और फिर तीसरा है मठोले, मठोले का मल्ले धराए, यानी काठ के जैसे हैं। ये ओ। सटोले कहाँ है, और कभी इतने सिटल्ले हो जाते हैं कि पता नहीं चलता। तो पांच हो गए। छठे हैं बुद्धू, और छठे हैं बुद्धू, और साते मुसर चंद करम फूट गए। हाँ, करम फूट गए सैया, मिले मुसर चंद करम फूट गए। हाँ, करम फूट गए सैया, मिले मुसर चंद करम फूट गए। अरे इनके हैं सात नाम गिन के सुना, इनके हैं सात नाम गिन के सुनाए। अरे मिट्ठू और मुझके, मठोले कहाँ है, कुठमल धराएंगे सटोले कहाँ है। और छठे हैं बुद्धू, और साते मुसर चंद करम फूट गए। करम फूट गए सैया, मिले मुसर चंद करम फूट फूट गए। गए। अरे
जबरदस्त, मतलब मैं क्या कहूँ इसके लिए, इतनी खूबसूरत आवाज, इतना सुरीला और इतना एंटरटेनिंग, ये कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा रेयर है। मतलब बहुत मजा आ गया सच में, ये तो बहुत बहुत ज्यादा, मतलब उम्मीदों से कहीं 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 ज्यादा आपने कमाल का गाया है। और मतलब अमेजिंग था, आई एम रियली शॉर्ट ऑफ वर्ड्स। गजब का एंटरटेनिंग, और आपके फेस के एक्सप्रेशंस कमाल एकदम। थैंक यू सो मच, यू बीइंग वेरी, आपको मालूम है नहीं सुर नहीं क्या होता है, वेरी नाइस। नहीं, तब तभी इसलिए मैं कह पा रहा हूँ क्योंकि बहुत एक जगह पे भी आपने इतनी सी भी सुर में कहीं गलती नहीं करी, और इतना ज्यादा अच्छे से उसको परफॉर्म करते हुए, अमेजिंग। मजा आ गया सच में। सो जी आई आई गेस हमारे पास बहुत ज्यादा वक्त तो नहीं बचा होगा अभी। हाँ, शायद दिस इज जी। अबाउट टू एंड। 5-7 मिनट और हमारे पास होंगे, 10 मिनट प्रोबेबली। सो हम कुछ कैंडिड बातें कर सकते हैं, कुछ अगर हमारे फैंस पूछना चाहते हैं तो प्लीज जी आप, दोस्तों अगर आपके पास कुछ सवाल हैं शाश्विता जी के लिए तो प्लीज आप अभी पूछ सकते हैं, हमारे पास कुछ वक्त बाकी है। सो सो वो कैन जरूर। सी, I can see someone. How are you, Lajja online? Okay, hi. I'm fine. I hope आप ठीक हो. और I still wear the dresses I got from you. और भावेश जी हैं. Hi भावेश जी. भावेश जी जो हैं वो हम दिल्ली गए थे परफॉर्म करने के लिए जश्न कलम की तरफ से. और भावेश जी was in the audience and he was very very nice. और उनके साथ बहुत मजा आया था बात करके. तो कई बार ऐसा होता है कि हम किसी से यूं ही प्रेजेंटेशन के लिए गए थे, परफॉर्मेंस के लिए गए थे और वो ऑडियंस में थे, बट वीव स्टक टुगेदर, वीव बीन इन टच. और मैं उनको फॉलो करती हूँ, वो मुझे फॉलो करते हैं. तो हाँ, मतलब एक तरीके से हम ऑडियंस से कितना पर्सनल रिश्ता बना लेते हैं. मुझे लगता है कि बिल्कुल ये जो हमारी की विधा है, ये हमें एक अपॉर्चुनिटी देती है कि हम सजीव जीवंत लोगों से मिलें, बात करें, उन तक अपनी बात पहुंचाएं और उनकी बात सुने. तो ये बिल्कुल मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है इस थिएटर की विधा के लिए. और यहाँ पर बिल्कुल। जी, तन्मय कह रहे हैं बहुत ही बढ़िया, अनुराग कश्यप कास्ट यू इन वासेपुर. लगवाओ हाँ, तुम ये मैंने थोड़ा भी सा. पढ़ा था। बिल्कुल, और बहुत अच्छा भी लगेगा, ये बिल्कुल उस मूड का गाना था जिस तरह के वासीपुर में थे। और आपकी आवाज में तो मतलब कमाल, लोग पागल हो जाएंगे ये सुन के, सीरियसली। दिस वाज सो गुड। Yellow Night. You have a wonderful voice. It was made evident even in your Premchand narration. I'm so glad you have heard it. Thank you so much. द ऑडियंस इज रियली बिग एडमायरर ऑफ योर्स, और बहुत अच्छे से फॉलो करते आ रहे हैं आपके सारे जितने भी आप चीजें करते हैं उनको। और मैं देख के बहुत हैरान भी हूँ और बहुत खुश भी हूँ कि दे आर मतलब सो वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट यू। दिस इज सो रेयर एंड सो अमेजिंग एक्चुअली। कहते हैं हम लोग लोग कमाते हैं जो अपनी जिंदगी में, एक्चुअली वही मैटर करते हैं एंड ऑफ द डे, क्योंकि बाकी सारी जो चीजें हैं वो बहुत मेटेरियलिस्टिक चीजें जो है वो एक ना एक दिन खत्म हो जानी है, लेकिन जो लोग हम कमाते हैं और उनका प्यार जो हम अर्न करते हैं वो मरते दम तक साथ में रहता है और साथ में जाता भी है। और हमने बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स देखे हुए भी हैं। सो अमेजिंग। जी जी. और आपसे एक एक गुजारिश रहेगी मेरी शाश्वता जी, मेरी वाइफ भी लगातार हमें देख रही हैं, एंड वो भी काफी सारे कमेंट्स कर रही थी। करुणा देवव्रत भट्ट हर नेम इज, तो अगर आप Oh, उनका भी, हाँ। hi, good. It's so nice to meet you virtually. वो यहाँ पे होती लेकिन हमारा 6 मंथ्स का बेबी है और वो अभी उसको थोड़ा सा संभाल रही है, तो वो अंदर है। नहीं तो वो आपसे जरूर एक बार रूबरू होने आती। बिल्कुल बिल्कुल, वो जरूरी है. So बिल्कुल। congratulations. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा, एक अगर हम सेशन चल ही रहा है तो एक क्वेश्चन मैं और आपसे पूछ ही लेता हूँ। वो ये है कि आपको इस फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर है उसके बारे में आपका मतलब क्या सोचना है, कैसा लगा आपको? कृष्णा पुरोहित जी ने बनाया है इसको, राइट? सो जी. क्या, कैसा आपको लगा जो बैकग्राउंड स्कोर था फिल्म का, मैं वृंदा का? बैकग्राउंड पसंद आया इस फिल्म का, दरअसल क्योंकि हम लोग मैं आपको इंक्लूड कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है आप म्यूजिकल फैमिली से हैं. जी। और एक्टिंग में पहली चीज होती है वो एक्टिंग मतलब सुनने से शुरू होती है. हम्म। यू आर लिसनिंग वेल देन यू विल बी इमोटिंग वेल, ऐसा कहा जाता है. बिल्कुल। सो और
एक्टिंग में भी सुर होते हैं, आवाज में सुर होते हैं, डायलॉग्स में सुर होते हैं, नोट्स होते हैं। और इसलिए सबसे पहला ध्यान जो मेरा आकर्षित होता है वो बैकग्राउंड स्कोर, साउंड डिजाइन और डायलॉग डिलीवरी की तरफ होता है जब भी मैं कोई भी विजुअल देखती हूँ तो मुझे लगता है कि इसके बैकग्राउंड स्कोर ने और साउंड डिजाइन दोनों चीजों ने इस फिल्म को काफी उठा दिया। जी बिल्कुल। और इंटरेस्टिंग उन्होंने जो जिस तरीके की जिस फील के साथ उन्होंने कंपोज किया है, जो जिसे जो धुनें उन्होंने कंपोज की हैं, जिस फील के साथ कंपोज किया, आई थिंक वो कम्प्लीटली जस्टिस करती हैं। स्कोर काफी उठा, मतलब कई बार ऐसा है कि वो दृश्य की गहराई को आपको महसूस करा देती है। अक्सर ऐसा होता है कि विजुअल चल रहा है, आप उसको ही देखते हैं और जज्ब करते जाते हैं। विद म्यूजिक अगर छुपे तौर पर वो आपके उस सेंस को इंक्रीज कर सके तो वो अच्छा म्यूजिक। तो मेरे ख्याल से ये इसलिए हाँ, इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और मुझे साउंड डिजाइन बहुत अच्छा लगा। मैंने उनसे स्पेसिफिकली तन्मय से कि मुझे बैकग्राउंड स्कोर बहुत अच्छा लगा और in fact sound design was also very very well done. Yes indeed. और साउंड ही मतलब लिटरली म्यूजिक ऐसी चीज है जो आप कुछ भी देख रहे हैं, अगर उसके साथ में वो परफेक्टली ब्लेंड हो रहा है, उस फीलिंग को अगर वो एक्सप्रेस कर पा रहा है, सो दैट्स ऑल अबाउट म्यूजिक, कि आप हर इमोशन जो है उसको अपने बेस्ट वे में आप उसको एक्सप्रेस कर सकें लोगों तक। दैट्स म्यूजिक इज ऑल अबाउट। सो अमेजिंग वर्क, अगर उन्होंने इस हर एक सीन की गहराई को उसके थ्रू छुआ है तो बहुत अच्छा काम है। एंड कृष्णा पुरोहित जी के लिए कूडोज अगेन। Yeah. Krishna, I will meet you. I wish the same and hopefully we will. अच्छा, मुझे तन्मय ने ये भी बताया, सॉरी या आप कुछ कह रहे थे? सॉरी आई कैन हियर यू। आप कहाँ पर लोकेटेड है, आप कहाँ पर बेस्ड हैं? मैं जयपुर में हूँ। नहीं, मैं जयपुर में रहता हूँ। हाँ, और यहीं पे मैं अपना इंडिपेंडेंट कंपोजिंग करता हूँ, प्लस म्यूजिक वीडियोस वगैरह करता हूँ। मैं मोस्टली क्लासिकल बेस्ड कंपोजिशंस करता हूँ। सो खुद ही गाता भी हूँ, खुद कंपोज करता हूँ और उनको फिर मैं रिलीज करता हूँ। सो आई एम डूइंग दैट अपार्ट फ्रॉम दैट। हाँ या आपकी आई हुई कुछ चीजें तो जी बहुत जी अच्छा है। आपके संस्कार हैं ये, म्यूजिक आपकी फैमिली में रन करता है, सो यू वेरी लकी आई वुड से। एंड एक्चुअली यही बात है, और मुझे सही बात है, ये चीज विरासत में मिली है और इतने ऐसे ऐसे लोगों का मार्गदर्शन और आशीर्वाद मुझे मिला है कि बस उसी से बोल सकते हैं कि सब जो भी है सब कुछ उसी वजह से है। सो आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ देम कि एक ऐसी लेगेसी और ऐसी एक जो है मेरे अंदर बाय बर्थ वो चीजें थी। सो थैंक यू सो मच फॉर एडमायरिंग एंड अप्रिशिएटिंग। अच्छा, एक क्विक सा हम एक लास्ट सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, उसके बाद हम इस सेशन को एंड की तरफ ले जाएंगे। सो व्हाट्स देयर विद दिस बीकानेरी भुजिया? तन्मय ने मुझे ये सीक्रेट बताया, आपका बीकानेरी भुजिया से कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है। सो मैं उसके बारे में और हमारी जो ऑडियंस है वो जानना चाहेगी। ये समथिंग रियली कैंडिड और बहुत मजा आएगा सुनने में। सो बताइए शाश्वता जी, क्या है ये कनेक्शन? I will kill you, Tanmay, for this. बताइए बताइए, हम जानना चाहते हैं। अरे देखिए, कुछ चीजें पर्सनल होती हैं।